सो 100 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर और सबने कैमरे बंद किए हुए हैं। ऐसा क्यों? सभी लोग इलाज ढूंढ रहे हैं इस गोली से बाहर आने का, बीमारी से बाहर आने का। तो अभी से शुरू करते हैं। प्रोग्राम के बारे में तो आपको बताया ही जाएगा बाद में। तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग दैट इज मिसिंग? पार्टिसिपेशन। लाइफ में पार्टिसिपेशन घटती है। व्हेन द पार्टिसिपेशन गोज डाउन, द नंबर ऑफ पेशेंट्स गो अप ऑन द प्लैनेट। So if you can put your cameras on, it will be wonderful. It is so much better to speak to a face than a blank black screen. It doesn't matter what you look like and what your background is. Okay, we are only here interested in you, and many of you are looking very serious. So we can start with a smile. Huh? Do you really need a reason to smile? I know there are problems, there is medicine, there is all nonsense happening, weight loss, hair thinning, diabetes, BP. Yeah. But you're still alive, so we can start by smiling, and there is a solution possible. So welcome to the webinar. And first thing we can do is we can try to sit straight. हाँ, सीधा बैठे बिना बैक के. Not just in this webinar, but otherwise also. आजकल तो लोग अपनी पीठ के बल बैठ बैठ के बीमार पड़ रहे हैं. People are taking backrest and falling ill. So uh, if you can sit straight, that will be great. I mean, comfortably straight. So who is this webinar for? ये webinar किसके लिए है? Webinar is for people whether you have hypothyroidism, whether you have hyperthyroidism, whether you have Hashimoto or autoimmune or thyroiditis, and also whether you have thyroid plus other conditions that many of you have shared, जो आपने share किया है, whether it is hair loss, hair thinning, weight gain. Somebody might also be facing weight loss also. कुछ लोगों को weight loss भी हुआ होगा. इन एडिशन टू दैट नींद नहीं आती है रात को, लो एनर्जी रहती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं. somebody is also people have also developed PCOS or PCOD, okay, along with the thyroid condition. So ये प्रोग्राम उन सभी के लिए है, ये वेबिनार उन सभी के लिए है, because you need to know that there is a way how you can come out of this condition as well as of the medicine that you are taking. Okay, but most importantly, who is this for? Okay, this is program, this webinar is for people who are willing to work upon themselves. Okay, अभी तक जो भी किया है, we have outsourced our health कि यहाँ से ये खा लिया, वो दवाई ले ली, ये किया, वो किया. But now there's if you take charge of your system, then you can correct your system. Okay, so this is for people who are willing to work upon themselves. So how many of you are willing to work upon yourself? Give me a yes in the chat box. Yeah. Okay. सबसे पहले तो एंथुजियास्टिक होंगे अपने बारे में, अपने क्योर के बारे में. Otherwise, we'll just be looking serious, dead serious, and we won't be able to make out who's dead and who's serious. Okay. So before we proceed with the webinar further, I'd like to park a few questions in your mind. Okay. Number one, do you know why you got into this condition? क्या आपको मालूम है कि आप इस कंडीशन में क्यों आए? नहीं मालूम है. ओके. अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे, फाइनली दे विल से जेनेटिक्स. ओके, फाइनली. बिफोर दैट, बियॉन्ड दैट देयर इज नो आंसर. बट जेनेटिक्स में होता था, परिवार में सभी को होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. इट इज नॉट हैपनिंग. So this is a very important question. Why is it happening? I mean, do you know the root cause? If you do not know the root cause, how will you cure it? Question number two is that isn't everyone taking standardized methods or therapies? Whether it is thyroxine, altroxine, Thyronorm, MC, the MG or whatever, ऊपर नीचे हो जाता है. The grammage kind of goes up and down. Similarly, whatever else you're trying, whether it is diet, yoga, pranayama, these are all standardized practices. And they are nice support. I'm not saying they are bad. They are support, but they're not curative in nature. Also, which of these therapies is building the strength of your functions or organs from inside? None of them are. Okay. So these are the questions you keep in mind when we proceed further. Yes, we'll tell you about Kumbhak. Who will tell you about Kumbhak? The person who is reviving it, the person who has invented it for the modern times.
the person who has observed himself to see how the human mechanics work. Okay, you don't need to read it in a book. You know best about the system that you have. Okay, so this person is Swami Rajvibhu or Rajiv Ranjan, as you may know him also. He's a rare Kumbhak yogi. He has invested his life in reviving Kumbhak and understanding human mechanics. Okay. Now, Kumbhak is something that many people will say, what does it mean? ये होता क्या है? Program में क्या कराते हो? Yes, we will tell you all that. Okay. But before we proceed further, let me tell you very clearly, it is not yoga. It is not pranayama. Okay. Even if you have been doing some kind of pranayam, you might be familiar with terms like Rechak, Purak and Bhaya Kumbhak, but ये वो नहीं है. Okay. क्योंकि उसका पर्पज अलग है, इसका पर्पज अलग है. So on this note, I'll hand over the session to Swami Rajvibhu and he'll explain what Kumbhak is. And the funny thing is, each one of you is using Kumbhak on a daily basis, So many times in a day, you just are not aware of it. That is the only thing. Okay? So I'll stop over here and hand him over the session. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? So I'll speak in both the languages, English and Hindi. मैं दोनों ही भाषाओं में बात करूंगा, अंग्रेजी और हिंदी. Whatever your language of comfort, आप जिसमें भी comfortable हैं, just catch that. उसको पकड़ेंगे. Right. So thyroid. So first tell me, how many people have come out of thyroid issue by taking medicine? One example in the whole world. एक दुनिया में example बता दीजिए जो thyroid से निकल गए दवाई लेके. Or at least you have come out of your symptom. आपको जो परेशानी आ रही थी कम से कम उससे तो निकलना चाहिए. So we don't even have one example. एक example भी नहीं है. Right? एक example भी. Not even 1% success rate. But you are following that very religiously, isn't it? 1% success नहीं है. There is not even 1% success, but you follow it like that is everything. Now tell me, if you whatever levels you measure, जो आप diagnosis करते हैं, measure होता है levels T3, T4, TSH, isn't it? Now today you measure your levels, then you measure it tomorrow. Will it be same? आज measure कीजिए, कल measure कीजिए, same होगा? नहीं होगा. So what measure are you taking as a standard? आपको दवाइयां कौन से measure, एक बार measure करके दी जा रही है ना? Is it right? Not even 1 hour the levels remain stable. It fluctuates. एक घंटे बाद भी करेंगे ना, levels will be different. Your TSH level is fine. You measure it now and see a horror movie. After 1 hour, TSH level will be high. So, what diagnosis are you believing upon or taking as a standard? एक बार टेस्ट करा लिया, दवाई दे दी. Is that really something okay to do? नहीं, that is not right to do. Right? So when you say levels, but why your level? What is happening behind it? पीछे क्या हो रहा? Why these levels are fluctuating? What is happening behind it? So I'm going to tell you what is the real issue. असली problem क्या है आपके साथ? And then we'll go towards understanding how you can come out of it. इससे निकल कैसे सकते हैं? In the end, we'll learn one Kumbhak method. आखिर में एक Kumbhak method सीखेंगे. You will have to be little patient. थोड़ा सा सांत्वना रखना पड़ेगा. If you want to come out of your problem, otherwise, so the world is open. So, is your thyroid really a problem at this point of time? The first question is everyone facing a thyroid issue? No. Your levels can fluctuate if your liver is not functioning well.
आपके ये लेवल्स फ्लक्चुएट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लिवर अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, your T4 converts to T3 in liver. Whatever you are taking in, it's T4, tetrahydrothioronine, synthetic T4. It gets converted into T3 in your liver. If your liver is not functioning properly, your levels will not be fine. Second thing, if you are getting into something called as adrenal overactivity, adrenal stress, adrenal glands are just above the kidney. दो थैलियां होती हैं किडनी के ऊपर. If you get anxious, you get fearful, doubtful, then this adrenal overactivity happens. ये fire fighting mechanism है body का. If adrenal overactivity happens in you, your thyroid will function less. It will go back. It's a protective mechanism of our body. When your thyroid becomes less active, that means your body is trying to protect itself. किससे protect कर रहा? There is a threat, but you don't even know what is the threat. Then, apart from what, if you take more protein, your thyroid levels can fluctuate. If you have protein allergic to protein, you will get into hypothalamic inflammation and your thyroid level will fluctuate. So there are so many reasons. बहुत कारण है ना thyroid level ऊपर नीचे होने. But every one of you is thinking thyroid. ये भी problem. This is also an issue. So what is the real problem? Let's come to that. असली में क्या problem है? असली में problem है. There are basically three things in your body. अगर life को देखें ना, if you want to decode life, there are three things that your body has. One, protein, it needs protein. Second, it needs carbohydrate. Third thing, it needs transformation, dynamism. Ayurveda calls it as kapha, pitta, vata. Three things. Out of those three things, one thing which has become difficult in your body, आपके शरीर में एक चीज जो गड़बड़ हो गई है, वो है protein metabolism. Your body is not able to metabolize protein. Right? Your body is not able to metabolize protein. Somebody wants things to get repeated. Watch the webinar again because it will be shared in your WhatsApp group. दोबारा देख लीजिए. Because we are exploring a lot of things. So if you'll keep repeating, we will not be able to finish the webinar. So your body is not able to metabolize protein. What is metabolism? Fundamentally, nobody knows. Have you seen protein? No. Have you seen carbohydrate? No. But we are just talking about these things. So whatever you understand, आप जो भी समझते हैं, your body is not able to utilize protein properly. आपका शरीर प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ठीक से. And let me tell you, more females suffer from this thyroid issue, isn't it? If you compare the number of males and number of females, the number of females are large. ऐसा क्यों है? Because their protein ecosystem is very sensitive. They have the responsibility of bearing a baby. एक शिशु को जन्म देने की जिम्मेदारी है ना फीमेल पे. So their protein ecosystem, शरीर में प्रोटीन को इस्तेमाल करने का जो इकोसिस्टम है ना, बड़ा सेंसिटिव है. That is why even a slightest of difficulty and their numbers fluctuate. थोड़ी difficulty होती है, numbers fluctuate. That is why more females suffer from thyroid issue. Now, your protein ecosystem is weak. Protein ecosystem weak है. So what is T3, T4, TSH? ये क्या है? They are hormones, isn't it? इनको क्या कहते हैं? See, you need to, because we are talking in certain language, so we need to use that language. You have not seen hormone, but you know, people talk about hormone. So hormone, T3, T4, TSH are hormones. How are they made? कैसे बनते हैं? They are made from protein. कहाँ से बनते हैं? Protein से बनते हैं. So if your protein ecosystem is weak, अगर protein का ecosystem weak है, your body will not be able to produce proper hormones.
नहीं बना पाएगा ठीक से हार्मोन. ओके, इंसुलिन सुना आपने? यू मस्ट ऑफ इंसुलिन ना. डायबिटीज में आ रहे हैं, हाइपोथायराइड के बाद डायबिटीज हो रहा है. क्यों हो रहा है? Why diabetes is happening? Because your body is not able to produce enough insulin. आपका शरीर इंसुलिन प्रॉपर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा. वेट अ बिट, इफ द इंटरनेट इज फ्लक्चुएटिंग, जस्ट वेट. आई एम रिपीटिंग इट मेनी टाइम्स, यू विल गेट इट एनी हाउ. अगर आपका शरीर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाए, नॉट ओनली इंसुलिन, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, दीज आर ऑल हॉर्मोन्स विच डू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. सो आप वो हार्मोन बना नहीं पाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा ना. Then how many ladies facing hormonal imbalance, menstrual cycle issue? How many ladies facing? है ना, बहुत सारे फेस कर रहे होंगे. If you are not facing now, you will face it later on. आगे चल के आपको hormonal imbalance आएगा. Right? So why hormonal imbalance? Because your body is not able to produce protein or metabolize protein and produce hormones. नहीं बना पा रहा. Apart from that, your hypothalamus, the hind brain, the small brain behind, because of allergy to protein, it gets into inflammation. उसमें inflammation हो जाता है. छोटा मगज है पीछे जो. The pituitary gland lies there. Pituitary gland, master gland है hormones के लिए. Pituitary gland lies and it is not able to function properly. Right? So hormonal imbalance, menstrual cycle imbalance, people get into so many menstrual issues and fertility related issues. Fertility related issue भी होता है because hormones, most fertility जो है ना is actually conducted by your hormones. Now your body is not able to metabolize protein. That means your organs will not get protein and also कार्बोहाइड्रेट. एनर्जी भी आपको बॉडी में नहीं मिल पाएगा, आपके ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगा. बिकॉज व्हाट ट्रांसपोर्ट्स थिंग्स इन योर बॉडी? आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड, इजंट इट? इट हैज प्रोटीनियस सेल्स इन इट विच ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग. आपके ब्लड में प्रोटीन है जो कि एक चीज को पकड़ के दूसरी जगह पे ले जाता है. सो प्रोटीन डज द ट्रांसपोर्टेशन इन योर बॉडी. आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन ही करता है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आल्सो. व्हेन योर सॉलिड लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन gets suffered, gases transportation also gets suffered. So how many people facing constipation? Solid transport नहीं हो रहा ठीक से. Second aspect of solid transport. दूसरा aspect second solid transport. अभी मैं बताता हूँ. Let's go first talk about how many people facing dry skin. Water retention कितने लोगों को हो रहा है? Dry skin, water retention, bloating. कितने लोगों को हो रहा है bloating? Transport is not. Weight issue. How many people facing weight issue? Solid transport is not happening. Transport नहीं हो रहा. एक जगह पे something gets stuck. It is not moving. That is weight, isn't it? What is constipation? Something is not moving. Solid transport नहीं हो रहा. Now, apart from that, your hair follicles has shortest living stem cells. आपके हेयर के जड़ में सबसे छोटी उम्र का स्टेम सेल होता. इट नीड्स प्रोटीन कॉन्स्टेंटली. कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन चाहिए. इफ इट डजंट गेट दैट, इट बिकम थिन. बाल पतले हो जाते हैं अगर उसको नहीं मिला न्यूट्रिशन तो. सेकेंड, डू एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट करें. पुट अ स्मॉल प्लांट इन अ पॉट. एक पॉट में एक छोटा पौधा लगा दो. डोंट वाटर इट. पानी मत डालो उसमें. कीप इट इन द सन. डोंट वाटर इट. पानी नहीं डाल. व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? क्या होगा? मड विल डेवलप क्रैक्स. क्रैक्स हो जाएंगे ना. एंड रूट विल नॉट बी एबल टू होल्ड. द प्लांट विल फॉल. इट विल डाई एंड फॉल. वो पौधा जो है मर जाएगा और गिर जाएगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू योर हेयर. आपके बालों के साथ में यही हुआ.
dry flaky skin, dryness in the skin, and not proper nutrition. So your hair is becoming thin and they are falling off. वो गिर रहे हैं. Just correlate with whatever I am saying. जितना बता रहा हूं उसके साथ में जोड़ते जाइए. You will get everything. You will see. You will be able to understand why it is happening. क्यों हो रहा है? आपको समझ में आ जाएगा. So if transportation is not happening properly, if the body is not transporting nutrients properly, next example, if your kitchen sink gets blocked, आपका kitchen का sink block हो गया, पानी जम गया, पानी भर रहा है. What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do to open it? You apply pressure. कोई pressure डालते हैं? You apply pressure. उससे वो खुलता है, pressure से खुलता, isn't it? Now your body is not transporting things properly. Will your body not increase pressure? क्या आपका शरीर प्रेशर नहीं बढ़ाएगा? This is what you call blood pressure. कितने लोगों को blood pressure fluctuation है? High blood pressure or blood pressure fluctuation, है ना? Now understand why your body is increasing blood pressure. If your body is not able to create proper pressure, or even if it is increasing the pressure, your heart will get impacted. आपके heart को impact होगा. So many people face tachycardia or bradycardia due to this. है ना? Heart rate increase, beat और heart rate increase. ये दो चीजें हो रही है ना, कई लोगों को हो रही हैं. सबको जोड़ने की कोशिश है. ऑल्सो को उसके साथ में जोड़ सकते हैं, राइट? सो तो टीपी ऑक्सीडेज ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज इम्यूनिटी? व्हाट इज इम्यून प्रॉपर्ली? जो इम्यून में करते हैं ना सेल्स that helps in creating immunity in your body are also a produce of protein से ही बनते हैं. That is why your immunity also gets suffered, or you get into autoimmune disorder, Hashimoto Graves disease, ऐसा कुछ ने सुना होगा, at least if you don't have that. Or thyroiditis, we also call it thyroiditis. Which can be connected. जो मैंने बताया उसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ सकती हैं. So we'll stop here. So what is the main problem that is happening inside you? आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये समझ जाइए. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली. आपके शरीर में प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा ठीक. खाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. If you take more protein, you will get into more problem. आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर रहा. If you put more protein, your body will get into more problem. So that is not a solution. Solution क्या है? Let's go towards solution. Okay? Solution की तरफ देखें. So there are a lot of problems in the body, but let's pick up one and let's see how we can solve it. एक पकड़ेंगे और देखेंगे उसको कैसे solve करते हैं. That's how we will move towards solution. ऐसे चलेगा, ठीक है? So one thing, we'll pick up one thing. एक चीज पकड़ेंगे. So what is disease? Let's define it. What is disease? Disease का मतलब क्या होता? कोई फंक्शन खराब हो गया आपके शरीर के अंदर. Some functional discrepancy has happened inside. Thyroid function not happening properly, thyroid disease. Liver function not happening properly, liver disease. Heart function, heart disease. Neuro function, neuro disease. Metabolism, metabolic disorder. ऐसा ही है ना? Every disease, at least every disease which is chronic in nature. Infection की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about infection. Only 30% of problem is infection. उसको हटा देते हैं. Every other disease is chronic. Chronic disease is functional discrepancy. कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा आपके शरीर में. कोई function नहीं हो पा रहा ठीक से. Something has gone weak. Something has gone weak. If you are suffering high thyroid levels or hyperthyroidism, that also means functioning not happening properly. Hyperfunctioning not happening properly. एक ही चीज है, functional discrepancy. What is disease?
functional discrepancy. Now thyroid has gone weak. ये पकड़ते हैं इस बात को and we will go towards solution. Thyroid has become weak. Weak thyroid हो गया. What is the solution? सोचिए. पढ़े लिखे ज्यादा होते ना तो थोड़ा इंटेलिजेंस कम हो जाता है पढ़ने लिखने, बट एक बच्चे के दिमाग से सोचिए. So if something has gone weak inside you, आपके अंदर कोई चीज कमजोर हो गई, what is the solution? Solution क्या है? उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, strengthen that functioning. Yes or no? Is there any other solution? If you strengthen the functioning, only then there is a solution. Otherwise, there is no solution. Thyroid की medicine खा के, if you take thyroid medicine, how many people have strengthened their thyroid by taking thyroid medicine? Thyroid medicine खा के thyroid strong होगा क्या? Thyroid gland नहीं होगा. Will it become strong by taking in food? खाना खाने से strong हो जाता है क्या organ? नहीं होता. आप तो उम्र में कमजोर ही होते जाते हैं ना. You go towards old age. खाना कितना ही खा रहे हैं. Howsoever you eat, your thyroid or other organs will not become strong. Strong नहीं होगा खाना खाने से. It will be a little support. थोड़ा support है. Medicine is a support. Your food is a support. Whatever medicine, natural, unnatural, chemical, whatever medicine. Every medicine is a support. Every kind of food is just a little support. So first of all, get it very clear in your mind. अपने दिमाग में clear कर लो. You are not curing thyroid at this point of time. आप कुछ नहीं करिए. You're not doing anything to cure thyroid. आप thyroid को strong करने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं. It will never become good. वो strong होगा नहीं. You will never come out of your problem. सीधा सीधा बता रहा हूं. Get it right in your mind. आप अपने थायराइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, so you will never come out of your thyroid. Only if you work towards strengthening your thyroid gland, you will come out of this problem. ठीक है, समझ जाए. So what is the solution? What is the solution? Empowering your thyroid gland. Make the function proper. उसका function को ठीक करना है. ठीक है ना? But how do we don't conduct thyroid function? हम तो करते नहीं function thyroid. So how can we strengthen our thyroid? How to strengthen the thyroid gland? कैसे करें? How to do? है ना? This is what we will talk about. यही हम बात करने वाले हैं. So tell me, all of you, आप में से कितने लोगों का, how many of you have their right hand strong? कितने लोगों का दायां हाथ strong है? Raise your left. उठाइए. Okay, how many people have their left hand strong? बायां हाथ कितने लोगों का? Okay, right. So how did you do it? आपने ये कैसे किया? Because why? Because when you were born, जब आप पैदा हुए थे, this was not the case. One hand was, both the hand was. This needs to be understood. ये समझना पड़ेगा आपको. है ना? What is the strength creating mechanism of this body? Only if we understand this, we can go towards strengthening the thyroid. हाँ या ना? First, let's understand what is the strength creating mechanism of this body. शरीर की मजबूत बनाने का क्या तरीका है किसी चीज को? Right? So let's see, how do you create strength? आप strength कैसे पैदा करते हैं उसको समझते हैं. Let's do an experiment. एक experiment करते हैं. Keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें. Keep your left palm like this. Make a fist from the right hand. दाएं हाथ से मुट्ठी बांधें. Now with all your strength, जितना जोर लगा सकें, push your left palm. अपने बाएं हथेली को जोर से push करें. धक्का दें. Push it hard. जोर लगाएं. How are you creating this strength? You are making an effort. जोर लगा रहे हैं ना? You are making an effort. How are you making this effort? ये strength जो आप पैदा कर रहे हैं, you are creating a strength of pushing. How are you creating this strength? ये जोर कैसे पैदा है? ये effort कैसे लगा रहे हैं? ये effort कैसे पैदा करें? How are you creating this effort? ये effort कैसे लगा रहे हैं? Muscles, bones, nervous system, mind, this and that. ऐसा कुछ आ रहा होगा आपके दिमाग में. Lot of things might be coming in your head. No, you are not looking in the right direction. सही दिशा में नहीं देख रहे.
So we will do the experiment again, and wherever I am indicating, just look there. दोबारा से करेंगे और जो मैं जहां मैं बता रहा हूं वहां देखना है. Let's do it again. This time put very hard. जोर लगाएं जितना हो सकता है, जितना हो सकता है जोर लगाएं. Push it very hard. See, the more you want to push, the more you have to hold your breath. जितना जोर लगाना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है. हाँ या ना? जितना जोर लगाना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है. The more effort you want to create, the more you have to hold your breath. अच्छा, कभी रस्सा कस्सी खेली है? Have you played tug of war? Have you pulled anybody? किसी को खींचा है? How you pull? Pull कैसे? खींचते कैसे? So clasp your fingers like this. अपनी उंगलियों को ऐसे फंसा लें. Clasp your fingers like this. फंसा लें and pull. खींचिए. Pull hard. How do you pull? कैसे खींचते हैं? You hold your breath. Yes or no? जितना जोर लगाना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है. Without holding your breath, you cannot make any effort. Even if you have to get up from a chair, chair से भी उठना हो तो क्या करना पड़ता है? You make a sound. Ah, what did you do? क्या किया? You held your breath. थोड़ी सांस रोक ली. हाँ, मॉर्निंग यू गेट अप, सुबह सुबह उठते हैं, है ना, अंगड़ाई लेते हैं. यू टेंस योर बॉडी, इजंट इट, टू फ्रेशन अप योरसेल्फ. अपने को तरोताजा करने के लिए शरीर को टाइट करके अंगड़ाई लेते हैं ना. हाउ डू यू टेंस योर बॉडी? हाउ डू यू टेंस योर बॉडी? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. सांस रोकनी पड़ती है. सो ब्रेथ इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू क्रिएट एफर्ट. ब्रेथ जो है, ब्रेथ होल्ड करके आप रेगुलेट करते हो अपने एफर्ट को. वॉट एवर यू डू थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में कुछ भी करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, हाउस होल्ड वर्क, कोई भी शरीर को हिलाने का काम करते हो, देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड व्हिच गोज बिहाइंड. अलग अलग अनुपात में सांस रुकती ही है. The more you want to make effort, the more you will have to hold your breath. थोड़े एफर्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा. With a little less effort, you won't even see that you are holding your breath. You won't even notice. Notice भी नहीं करेंगे. But breath hold के बगैर, without breath hold, variable amount of breath hold which goes behind, without breath hold, you cannot conduct any function. आपके शरीर का voluntary function आप नहीं कर सकते. Right? So now lift your strong hand up. अपना जो मजबूत हाथ है वो ऊपर उठाइए. Right or left, whichever. आप मुट्ठी बांधिए. Make fist. Lift your strong hand up. ऊपर उठाइए. Tense it tight. Tight कर लीजिए उसको. बहुत tight कर लीजिए. Tense it very tight. See, you hold your breath and direct the impact towards the strong hand. आपने सांस रोकी और उसको, वो एफर्ट को दिशा कहां दे दिया, डायरेक्शन कहां दे दिया? Towards that hand. The other hand is loose, isn't it? So that is why when you worked with that hand, जब उसने उस हाथ से आपने काम किया, there was a variable amount of breath hold behind. अलग अलग अनुपात में सांस रुक रही थी. उसकी दिशा कहां जा रही थी? But the direction was going towards that hand, and that's how that hand became strong. वो हाथ strong हो गया जब आपने उससे ज्यादा काम किया. So breath hold and direction, breath hold and direction. I'll give you one more example. एक और example दूंगा. You go to gym जाइए. You know people go to gym and build muscles. You know people go to gym and build muscles. Muscle build करते हैं ना. How do they build muscles? Muscles को कैसे build करते हैं? They lift weight उठाते हैं ना. Weight उठाते हैं. They lift weight. Okay. Now you go to gym and lift weight from your one hand. एक हाथ से lift कीजिए weight. From just right hand, for example, right hand. So the more weight you want to lift, the more you will have to hold your breath. जितना weight उठाना होगा उतनी सांस रोकनी पड़ेगी. And what is the other thing that you will use? दूसरी चीज क्या इस्तेमाल करेंगे? The muscles of that hand, उस हाथ के muscles को इस्तेमाल करेंगे for lifting weight. Breath hold and muscles. So direction of breath hold will go towards muscles. आपके breath hold का direction कहां जाएगा? Muscles की तरफ में. And those muscles will get built. Not the left hand. Only the right hand muscles will get built because breath hold and direction.
breath hold and direction. That's how you build voluntary strength. आप शरीर का strength ऐसे build करते हैं, right? But thyroid is not in your voluntary control. Thyroid को तो आप नहीं करवा रहे. So this is the most important point at this webinar. अब मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए. Just understand whatever I am saying. If you hold your breath and do not give an external direction, सांस को रोक लीजिए और बाहर की ओर दिशा नहीं देना. That means you hold your breath and become absolutely still. You hold your breath and do not move at all. What will happen? होगा क्या? You will start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. आएगा? Your heart rate will increase. The temperature of your body and the metabolism will increase. Where is the direction? Where has the direction of your breath hold gone? आपके breath hold की दिशा कहां गई? सांस रोकने की दिशा कहां गई? Not outside. बाहर नहीं, कहां गई? Inside. It went inside. That is why your metabolism increases, heart rate increases, temperature increases, you start sweating. अंदर की ओर चली गई. अंदर की ओर चली गई ना? The direction went inside. So the question is, can you direct your breath hold towards your thyroid and make it strong? क्या आप सांस रोक के उसको अपने थायराइड ग्लैंड की तरफ में दिशा दे के उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? You don't know how. आपको केवल मालूम नहीं है कैसे. But there is no other way than this. इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं to strengthen your thyroid. You can direct your breath hold towards your liver and make it strong. You can direct your breath hold towards your nervous system, make it strong. Towards your heart and make it strong. Towards your kidney, make it strong. Towards your metabolism, make it strong. This is the only way to strengthen anything inside your body. There is no other way. This is Kumbhak therapy part 1. This is Kumbhak therapy part 1. ठीक है? कभी सोचा ऐसे? सोचना चाहिए था. This is the only way to strengthen your thyroid. There is no other way. Now let's go to the second step of this webinar. दूसरे पायदान पे आ जाते हैं. Now I'm asking a question. Everybody should write in the chat box. Chat box में सभी लिखेंगे जो भी उनको समझ में आता है. So which doctor or which scientist designed your body? कौन से डॉक्टर ने, कौन से वैज्ञानिक ने आपके शरीर को डिजाइन किया था? आपको जितना समझ में आता है आप लिखिए, चैट बॉक्स में डालिए. So अच्छा, आपका ब्रांड डिफरेंट ब्रांड है. So most of the people are saying God. ज्यादातर लोग गॉड बोल रहे हैं. You fundamentally want to say that you don't know. Actually आप बोलना चाहते हैं कि आप जानते नहीं. So raise your hand if that person has made God have tea at their home. चाय किसने पिलाया गॉड को अपने घर में? और खाना किसने खिलाया? और एड्रेस किसका को मालूम है गॉड का? फोन नंबर मालूम है? Have you know? Do you know the phone number of God? नहीं, you don't know God actually. But I will prove that you are more intelligent than you think. अभी जैसा सोच रहे हैं ना, थोड़ा एजुकेशन ने आपको कम इंटेलिजेंट बना दिया. अदरवाइज ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वाइज. तो आप लोग ज्यादा वाइज हैं. यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक. एवरी वन ऑफ यू नोज हु डिजाइन्ड योर बॉडी. केवल आप देख नहीं रहे सही दिशा में. एवरी वन ऑफ यू नोज हु डिजाइन्ड योर बॉडी, बट यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन. थोड़ा द वे यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ, एजुकेटेड योरसेल्फ, उसने थोड़ा आपको कम बुद्धिमान बना दिया. मेड यू लेस इंटेलिजेंट. ओके, बट यू आर मोर वाइज. आई प्रूव इट हियर. मैं यही प्रूव करूंगा. So there is an African in this webinar. If there is an African in this webinar, अगर वो वेबिनार में एक अफ्रीकन ज्वाइन करते हैं, the moment you look at that African or somebody passing through your street, आपकी गली से गुजर रहा है, the moment you look at that person, जैसे ही उसको देखते हैं, what do you say? देखते ही बोलते हैं ना. The moment you see, you say African. शरीर देख के ही बता देते हैं आप किसने डिजाइन किया उसको. Who designed his body? Chinese, Northeast. Are you from Northeast or are you South Indian? The moment you look at a person, you get an idea. Where does the person belong to? Yes or no? शरीर देख के ही आपको आइडिया लग जाता है. You are more wise.
आप जानते हैं हु डिजाइन्ड हिज बॉडी और हर बॉडी? किसने डिजाइन किया? When you say African, जब अफ्रीकन बोलते हैं, who designed his body? Africa, Chinese, China, northeast of India, South India. What are these things? ये क्या है? These are environment. वातावरण है, वातावरण है ना? So an environment designs human body. एक वातावरण, an environment designs human body. वातावरण human body को डिजाइन करता है. So what is this design towards? If we know the design of this body, we will be able to conduct it well. हम अगर इसका डिजाइन समझेंगे तो हम इसको ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे ना. This body is designed for natural food which grows in an environment. वातावरण में जो भोजन पैदा होता है उसके लिए शरीर डिजाइन है. Natural food. So what are you eating from morning till evening? क्या खा रहे हैं? Altered food, cooked, processed, genetically modified, packaged. You are eating altered food. बदला हुआ भोजन ले रहे हैं. Your body is designed for natural surrounding. आपका शरीर बना हुआ है प्राकृतिक वातावरण, आसपास प्राकृतिक होना चाहिए, है ना? In the last 50 years, we have destroyed the environment by 80%. 80% 50 साल में डिस्ट्रॉय कर चुके हैं एनवायरमेंट को. 80% of plants and animal species have gone extinct. 80% जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं. Everything got polluted, you know this? Air pollution, water pollution, this pollution, that pollution. Where has water gone? पानी कहाँ है? Where are your ponds, lakes, rivers? जमीन के नीचे कितना चला गया पानी? Under your feet, how far has the water gone? From 20 feet, 50 feet to 5,000, 10,000 feet. Altered environment. You are living in altered food, altered environment. Now you are intelligent people. आप समझदार लोग हैं. Tell me. I'm asking the third question. So, is your body designed for unnatural chemical medicine? Your body is not designed for synthetic, unnatural. जो synthetic T4 खा रहे हैं, is your body designed for synthetic, unnatural chemical medicine? No, not at all. Suppose you have a petrol vehicle at home. आपके घर में पेट्रोल की गाड़ी है. Will you put diesel or kerosene into it? क्या उसमें डीजल केरोसिन डालेंगे? नहीं. Why? Common sense. Common sense होता ना? It is designed for diesel. But when you use this body, where does this common sense go? जब इस शरीर को इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है? So आंखें खोलें. Just open your eyes. More medicine, more disease. कोई भी डिजीज कम हो रहा है? थायराइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. Diabetes increasing or decreasing? Increasing. Blood pressure, heart disease increasing or decreasing? Number one cause of death, cancer increasing or decreasing? 12%, at the rate of 12%. Say any disease, every disease is increasing. More medicine, more disease. आंखें तो खोलना पड़ेगा. You can't just live with your closed eyes. Okay? So let's go to the third and final step of the program. है ना? जो third step and final step of the program. I'll go a little more technical here. थोड़ा मैं और technical हो जाऊंगा. I'll tell you how we cure thyroid. Thyroid को कैसे हटाते हैं? It can be easily cured. Let me tell you that. बिल्कुल ठीक cure हो सकता है इसका. Only the time period varies for people. 100% cure होगा. The time period will only vary. कितना समय किसको लगेगा केवल उसका फर्क है. सबका ही क्योर होगा. So if you are not doing any function inside, अगर अंदर कोई फंक्शन आप नहीं कर रहे, involuntary function, हाँ, you are not doing any function. Thyroid function you are not doing, liver function you are not doing. So who is doing it? कौन कर रहा है? हाँ, if अगर आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? If you are not doing it, who is doing it? So let me give you an example. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. माइंड, अगर प्रियंका कह रही कि माइंड कर रहा है तो आप ठीक कर लीजिए थायराइड माइंड से. Why haven't you corrected your thyroid with your mind? सही क्वेश्चन पूछेंगे ना तभी पता चलेगा सही आंसर. गलत मतलब इतना क्यों
हिप्नोटाइज होना है, कुछ भी कोई बोल देता तो आप मान लेते हैं. वेयर इज योर माइंड? वेयर इज योर माइंड? ब्रेन में माइंड है ऐसा तो कोई भी प्रूफ नहीं है. हर सेल में माइंड है. सो डोंट थिंक कुछ भी. देखिए अभी लेट्स नॉट बिकम अ स्लेव टू एन एजुकेशन सिस्टम. अभी बहुत छोटे स्लेव ने भी हम बने होंगे. डोंट बी स्लेव टू एनी काइंड ऑफ फॉल्टी आइडिया. एक आइडिया का स्लेव नहीं होना चाहिए. बी अ लिटिल फ्री. थोड़ा फ्री छोड़ो ना, अच्छा लगता है. यू विल अंडरस्टैंड मोर. आपको समझ में. एंड आई एम सेइंग यू आर मोर इंटेलिजेंट. आप ज्यादा समझ रहे हैं. जितना समझते हैं उससे ज्यादा समझना. सो हु इज डूइंग द फंक्शन? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सो यू नो ग्रेविटी पुल्स यू डाउन. सब जानते हैं. एवरी वन ऑफ यू नोज द ग्रेविटी पुल्स यू डाउन. गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है आपको. पृथ्वी अपने ओर खींचती है ना. यस और नो? एवरी वन ऑफ यू नोज. हर एक जानते हैं आप में से. ग्रेविटी पुल्स यू डाउन. देन व्हाई डू यू ग्रो टॉल? ऐसे लंबे क्यों हो जाते हैं आप फिर? व्हाई डू ट्रीज ग्रो अप? पेड़ पौधे ऐसे ऊंचे क्यों उड़ जाते हैं? व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई? पक्षी उड़ क्यों जाते हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी. दे मस्ट बी मेकिंग एन एफर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. यस और नो? आप एक एफर्ट लगा रहे होंगे ना ग्रेविटी के अगेंस्ट में. अ ट्री ऑल्सो माइट बी मेकिंग और will be making an effort opposite to gravity. A bird will also be making an effort opposite to gravity. तभी तो हो पाएगा ना. The against gravity force, the upward force, and the effort that you make against gravity, this is called as udana. कुंभक साइंस में इसको कहते हैं उदाना. Right? Now suddenly the upward effort has become less. You have become weak in making upward effort. आप कमजोर हो गया वो एफर्ट. उदाना बिकेम वीक इनसाइड यू. अपवर्ड फोर्स हैज बिकम वीक इनसाइड यू. फिर कैसा फील होगा? तो हाउ विल यू फील इन योर बॉडी? हेवी हेवी फील होगा ना. ग्रेविटी विल पुल यू डाउन. आपको हेवी हेवी फील होगा ना. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फीलिंग हेवी बिकॉज ऑफ थायराइड. हेवी फील होगा ना. ऑल्सो इन योर माइंड यू विल फील हेवी, डिप्रेस्ड, लो मूड, हेवीनेस इन द माइंड. So you utter this word so consistently. STRESS, 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 stress. मगर आपको मालूम नहीं है स्ट्रेस क्या होता. I am telling you what is stress. So if less उदाना, अगर कम उदाना है तो your body will feel heavy, your mind will feel heavy. So if your body will feel heavy, will you not get knee pain, lower back pain, spine issue, cervical issue? ऐसा होगा कि नहीं होगा? So are these problem increasing? क्या ये बीमारियां बढ़ रही हैं? उदाना कमजोर हो रहा है. Your internal function will also be not able to, it will not happen properly. अंदर organ function भी ठीक से नहीं हो पाएंगे ना. So this is just one force I have talked about. There are 84 forces which makes function happen inside your body. 84 अलग अलग forces हैं. Which force has gone weak inside you because of which you have gone into thyroid issue? हाइपो हाइपर थायराइडिटिस. तीनों के बारे में बात कर रहा हूं. कौन सा फोर्स कमजोर हो गया जिसकी वजह से थायराइड इश्यू आया? Which force has become weak because of which you have got into thyroid diabetes? Which force has become weak inside you because of which you have got into thyroid diabetes, blood pressure and other symptoms? So this is what we diagnose. यही हम diagnose करते हैं. And this is not a medical diagnosis. I'm using the term diagnosis, but we find out the root cause. So this is called as, we call this as प्राण शक्ति diagnosis. दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है. This is one of its kind of a diagnosis in the whole world. प्राण शक्ति diagnosis. We do a prana shakti diagnosis, find out what has become weak inside you. We design a Kumbhak method to strengthen those weak forces, to strengthen those weak organs, to strengthen your weak functioning. And it is customized, get customized according to you, your system. So what the Kumbhak therapy is customized according to each one's system.
ये सबके लिए समान एक जैसा नहीं होता, बिकॉज द रूट कॉज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. So find the root cause, fix it, and you can come out of your thyroid. This is Kumbhak therapy part 2. So now we will do one Kumbhak practice and we'll finish the webinar here, at least in terms of what we want to say. Kumbhak is not yoga, not pranayama. Why? Because yoga and pranayama is done towards getting samadhi, moksha, mukti, enlightenment, self-realization, and so on and so forth. Nirvana, kaivalya. Pick up any yoga book. The end product of yoga factory is samadhi or moksha or enlightenment. So we don't want to give you enlightenment or samadhi. So that is why we are not doing yoga. We want to give you health, better life, long life. ये हमें चाहिए, हम योगा की तरफ नहीं ले जा रहे हैं. That is why Kumbhak. So Kumbhak is effort making mechanism of living system. When you speak, you make effort. जब आप बोलते हैं तो effort लगाते हैं कि नहीं? You are doing Kumbhak. When you move, you make effort. You are doing Kumbhak. When you hear, you make effort. You're doing Kumbhak. When you see, you make it. When you focus, you make an effort. You are doing Kumbhak. So without Kumbhak, life cannot happen. Only if you make effort, you are living, otherwise you are dead. So Kumbhak is life. Kumbhak is life, synonymous to life. So एक Kumbhak method करेंगे. Here we will use two kind of Kumbhak. Breath Kumbhak and sound Kumbhak. अभी जो मेथड करेंगे उसमें दो तरीके के कुंभक इस्तेमाल करेंगे. We'll use just two कुंभक. There are lakhs of कुंभक. लाखों तरीके से कुंभक कर सकते हैं. And we are trying to revive it. इसको मैं revive करने की कोशिश कर रहा हूं. So lakhs of kumbhak can be done in so many different ways. So we will use just two of them. एक साथ in one method. We'll do one method. It's a generic method. ये generic method. This is not therapy. Let me tell you, whatever I am teaching here is not therapy. Why? Because for therapy we need to diagnose you. Therapy करने के लिए आपका diagnose करना जरूरी है आपको. We have not diagnosed you. तो generic सिखा रहे हैं. Generic method. Just like yoga, pranayam and something people teach ना, सबको एक चीज सिखा दिया. Like medicine that you take. है ना, एक ही सबको दे दिया medicine. Dosage ऊपर नीचे कर दिया. So this is just a generic thing, but still it will give you lot of benefit. उसके बावजूद भी आपको काफी benefit देगा. Right? So we will learn. I'll tell you the benefit later on. पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ. First I'll tell you the method. Second, you do it with me. मेरे instruction के साथ में second time करेंगे. Third time you can do it on your own and see that you are able to do. तीसरी बार अपने आप करके देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं. Even then if you don't get it, अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आए, you can watch the webinar again. The video recording will be recorded and it will be shared with you. तो ये webinar दोबारा से आप देख सकते हैं, method दोबारा से आप देख सकते हैं वीडियो को. So this is Devapana Kumbhak, one of the lakhs of Kumbhak. Devapana Kumbhak. Now don't go on the Google and try to search it out. Google में कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं होती हैं, है ना? You won't find Kumbhak there because it is still in the process of revival. We are still reviving it. अभी हमने Google में इसको इतना ज्यादा इसका कंटेंट डाला नहीं है. We don't have time actually. Time नहीं है हमारे पास इतना. तो how old is this therapy? This is new therapy and as old as humanity. किसी ने पूछा कितना old as humanity and as new as you are. So every therapy is always adjusted according to the current people. Then only it works upon them. You know, I told you Kumbhak, without Kumbhak you can't live. So how old is Kumbhak? It's eternal. But it has to be done in a conscious manner. You are doing it unconsciously. If you do it in a conscious manner with a certain method, you will derive benefit out of it. So it's a very cutting edge technology and as old as life. ठीक है, Devapana Kumbhak. I'm telling you the method मैं बता रहा हूं. So what you have to do, the way you yawn, जैसे उबासी लेते हैं ना, the way you yawn, you inhale 3 times.
फर्स्ट टाइम यू इनहेल फुल, जैसे उबासी लेते हैं ना, खींचते हैं हवा, ऐसा एक बारी में पूरा खींच लीजिए. सेकेंड टाइम पुल अ लिटिल मोर, थर्ड टाइम पुल मैक्सिमम. 3 बार खींचना है. यू हैव टू पुल 3 टाइम्स एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, द एयर दैट यू हैव इनहेल, जो हवा आपने ले लिया ना, यू हैव टू पुश इट डाउन. उस हवा को नीचे की ओर पुश करेंगे. हाउ टू पुश इट डाउन, हाउ टू पुश इट डाउन. यू नो व्हेन यू डिफिकेट, जब आप पॉटी करते हैं तो पॉटी नहीं हो रही है ना, कॉन्स्टिपेटेड अगर है तो आप जोर लगाते हैं ना, थोड़ा यू मेक एन एफर्ट, जोर लगाते हैं ना नीचे की तरफ में, जस्ट मेक एन एफर्ट दैट वे. बट डोंट डू इट लाइक अ रेसलिंग. रेसलिंग नहीं करनी है ना, पहलवानी नहीं करनी है. डू इट माइल्डली, आराम से करें. You push it down. You can also tense your abdomen, hip, legs and make fist and try to assist the pushing. आप अपने पेट को टाइट कर सकते हैं, कमर को टाइट कर सकते हैं, पांव को टाइट कर सकते हैं, मुट्ठी बांध के थोड़ा वो पुश करने के लिए असिस्ट कर सकते हैं. Now hold. Once you push it down, आपने जोर लगाया, उसके बाद रोक लेंगे. Hold for 8 counts. 8 गिनती तक रोक लेंगे. हाँ, 8 गिनती तक रोक लेंगे. उसके बाद एक्सेल करना है वेरी वेरी स्लो. बट हाउ डू एक्सेल, कैसे एक्सेलेशन करना है, एक साउंड निकालना है. जब जोर लगाते हुए जो साउंड आता है ना, व्हेन यू पुश, व्हाट साउंड यू मेक, 12 काउंट्स में एक्सेल करना है, 12 गिनती में एक्सेल करना है. ठीक है, 8 काउंट होल्ड एंड 12 काउंट एक्सेल. आराम से करना है, थोड़ा जोर लगाना, ज्यादा जोर नहीं लगाना. 50% ऑफ योर एफर्ट, जस्ट मेक 50% ऑफ योर एफर्ट. अच्छा, व्हेन यू आर डूइंग कुंभक, डू इट विथ अ फ्री स्पाइन. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या, टेक नहीं लगाना है. व्हाइल डूइंग कुंभक यू डोंट टेक द बैक रेस्ट और डोंट सपोर्ट योर बॉडी. While doing kumbhak, in between 2 rounds, when you are relaxing, you can take support. While doing kumbhak, you don't support your spine because we are creating a trigger inside. It should not get aggregated at one place. एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए वो ट्रिगर, सही जगह पे जाना चाहिए. Second thing is, if you are in a little light stomach condition, थोड़ा हल्के पेट है ना, तब करेंगे. If your stomach is little light, that means 3 hours after a meal, खाना खाने के 3 घंटे के बाद में करेंगे. Right? So let's do one round together. साथ में करते हैं एक राउंड. Do it with me. Demo वही मिल जाएगा. करो मेरे साथ में. I am speaking. Just do whatever I am saying. है ना? Free your spine. Spine take नहीं लगाना. Don't take the backrest. Come a little ahead. हाँ? Make fist. मुट्ठी बांध ले थोड़ा. Make fist. Keep it on your knees. घुटने पे रखेंगे. Open your mouth. मुंह खोलो. Suck in as much air as you can. खींच लीजिए हवा जितना खींच सकते हैं. होल्ड, पुल मोर, और खींचे. होल्ड, थर्ड टाइम पुल मैक्सिमम, पूरा खींच लें. होल्ड, क्लोज योर माउथ, माउथ बंद करें. पुश इट डाउन, नीचे जोर लगाएं. टेंस योर एब्डोमेन, टेंस योर हिप, टेंस योर लेग्स. पुश द एयर डाउन, हवा को नीचे धक्का दे. होल्ड. 8 7 6 5 4 3 2 1. Now exhale, making a sound. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. This exhalation part is tough, you know. This exhalation part is little tough, but as you will practice, you will be able to do. आपको आराम से कर पाएंगे. बहुत पहलवानी नहीं करना है ना. These are very powerful methods. बहुत powerful methods होते हैं. Do it with gently and mildly. आराम से करें इसको. So minimum number of rounds 8. When you do this kumbhak, deva pana kumbhak, minimum number of rounds is 8. 8 rounds. Maximum is 16. Don't go beyond 16. 16 rounds से ज्यादा नहीं करना, नहीं तो sudden lot of change will start happening inside your body and you will not be able to handle it. 8 round minimum, 16 maximum. 8 minimum, 16 maximum. Always give a little gap between 2 rounds. एक राउंड किया, catch your breath, relax your breath. सांसों को सामान्य करें, उसके बाद ही अगला राउंड अटेम्प्ट करेंगे. So people facing lower back pain, knee pain, cervical, joint issue,
है ना, उनका वो बहुत सपोर्ट मिलेगा. इफ यू आर फेसिंग कॉन्स्टिपेशन और एंजाइटी, फियर, मेंटल चाटर, दिमाग बार बार चलता रहता है, यू विल गेट रिलैक्स्ड, आपको आराम मिलेगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट, इफ यू हैव ब्लड प्रेशर इश्यूज, शुगर इश्यूज, you will get supported in that, उसमें मदद मिलेगा. Of course, the metabolism will increase. आपका metabolism, protein metabolism increase होगा. It will help you increasing your protein metabolism. And many, many more. Bloating, weight gain, water retention, menstrual issues, बहुत सारी चीजों में help करेगा. But this is not therapy. Once again, this is not therapy. We have not diagnosed you. This is just a generic method. Can you do one round on your own? एक राउंड अपने आप करेंगे क्या? देखना अभी और अच्छा होगा. एक राउंड अपने आप करेंगे क्या? Do one round on your own. I'm repeating the instruction. Instruction को दोबारा से मैं बता रहा हूं. So make face, keep it on your knees. Inhale 3 times from your mouth. मुंह से 3 बार हवा खींचनी है. हवा खींच के थोड़ा रोको, फिर खींचो, फिर रोको, फिर खींचो, फिर रोको. And then close your mouth. Push the air which you have inhaled down. जैसे पॉटी करते हैं ना, उसे में पुश करते हैं, वैसे पुश करें. होल्ड फॉर 8 काउंट. 8 गिनती तक रोकेंगे. काउंट इन योर हेड, अपने दिमाग में काउंट करें. एंड देन यू एक्सहेल वेरी वेरी स्लोली, मेकिंग अ साउंड फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स. नाक से हवा निकालनी है, मेकिंग अ साउंड ऑफ एक्सहेल स्लोली. इट विल हेल्प यू इन योर एक्सहेलेशन. मेकिंग दिस साउंड विल हेल्प इन योर एक्सहेलेशन. हैविंग योर एक्सहेलेशन लॉन्ग, लंबा एक्सहेलेशन में हेल्प करेगा. So 2 types of kumbhak we have done here, and 2 different types of trigger we have created. One is downward trigger and the other one is expandable trigger. अभी इसमें ज्यादा नहीं जाते, इतना समझ लीजिए. 2 तरीके के कुंभक इसमें हमने किया. We did 2 kinds of kumbhak in that. कुंभक, if you haven't got it yet, आपको अभी समझ में नहीं आया, watch the recording again. देखो यहाँ आगे आपको टीम बताएंगे. Thank you, sir. So now to talk about how the program is. Program किस तरह से? We are talking about an online program. The objective of the program is to reverse all of your chronic conditions completely. Now, what does reversal mean? Reverse कहने वाले लोग बहुत होते हैं, but we are helping you define what reversal means from our perspective. दवाइयाँ पूरी तरह छूटनी चाहिए. There should be no medication. All your symptoms should be getting relief. You should be getting relief from all the symptoms, and there would not be any lifelong or prolonged dependency on Kumbhak therapy. Now, the entire program is only about breath hold practices. There is no exercise or hand-leg movement required. There is no dietary restriction. There is no medicine, no Ayurveda, no nothing is there. Yes, आपको लाइफस्टाइल गाइडेंस और सपोर्ट और रिकवरी के लिए काफी चीजों की गाइडेंस जरूर दी जाएगी. बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि लोगों ने बोला, पीपल आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, लो एनर्जी एटसेट्रा, मूड स्विंग्स एंड ऑल ऑफ दैट. वो सारी चीजें होती हैं. स्किन एंड हेयर क्वालिटी इज अनदर प्रॉब्लम. डाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, स्लीप बेहतर होगी, वगैरह वगैरह. सो द एंटायर प्रोग्राम इज फॉर 3 months. It is based on, as Swamiji mentioned, it is based on Prana Shakti diagnosis. 3 classes होती हैं जो कि weekly sessions होते हैं. I'll describe how the classes are, and there are 7 structured practice correction sessions also. इस सारी चीज में प्रोग्राम में जो मेन चीजें जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाता है, वो है एक तो रूट कॉज. Through Prana Shakti diagnosis, we would be doing a root cause analysis for you and personalization accordingly. There is support for you through phone calls and WhatsApp between 7 a.m. and 8 p.m. in the night. So थोड़ा सा कम है इससे, 10 p.m. से 7 a.m. and 8 p.m. Practically 24/7 working hours में पूरा रहेगा. And then there is guaranteed support even beyond those 3 months that we are promising. So ये 3 महीने का program नहीं है. This is not a 3-month program. This is a sort of a membership, if you would. So एक membership की तरह से है जब तक के program की promise नहीं meet हो जाती, which is medications, symptoms should be both of them completely gone, and there should not be no prolonged dependency on Kumbhak therapy.
प्राण शक्ति डायग्नोसिस के बारे में एक सिंपल सा ऑनलाइन गूगल सर्वे का फॉर्म होगा, उस तरह से फॉर्म रहता है, यू कैन फिल इट वेरी इजीली एंड दैट इज हाउ वी diagnose. We also take a recent photograph and all your tests and reports if you want to share with us, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, they help. तो आपको अपने बारे में मेंशन भी करना होगा. Now the entire program, अगर इसको स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये इस तरह से है. There are 4 phases in the program. पहली फेज में आप सीखते हैं which is 20 days. That is where learning happens. So there are 6 classes in the learning phase. So we'll talk about those classes. Then there is an implementation phase जिसमें आपको individual guidance दी जाती है and we help you, get into the discipline of doing it correctly and accurately. So there are mentors who are there to assist you and so on. तो वो सब रहता है. Then there is a 30-day correction phase जिसमें practice correction sessions हम कराते हैं and finally an extended support phase even beyond 3 months till the point your symptoms, your medication and everything is gone and you don't even have a prolonged Kumbhak therapy dependence. So about the learning class or the learning phase. So पहली क्लास आपकी होती है बेसिक कुंभक थेरेपी की to basically acclimatize या बॉडी को आदत डालने के लिए कुंभक थेरेपी की. उसके बाद में आपका डायग्नोसिस होता है क्लास के तुरंत बाद. Then the second class in the next week is about advanced Kumbhak therapy to prepare your body for personalization, and the third class is about personalization. Meanwhile, आपकी diagnosis okay, आपके individual आपकी practices की PDF आपको मिल जाती है, which is what you are taught in the third personalized class. To ensure that you are doing it correctly, we have a 4-tier support mechanism through program mentors. There is a WhatsApp and a phone call support, and there is also a video discussion support. अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो you can get into a consultation with your mentor, और वो mentor के साथ में video discussion में अपनी queries को resolve कर सकते हैं आप. Each session के दौरान, learning session के दौरान, स्वामी जी खुद आपको हर क्रिया 3-4 बार रिपीट करके बताते हैं, आपको सिखलाते हैं, जैसे अभी बताया. आपके साथ में कुंभक थेरेपी के मेंटर्स रहते हैं whose job is to look at you and observe you and correct you through chat while you are doing your practices within the session itself. You have to be absolutely convenient, जैसे भी आपकी मर्जी हो. Only thing, you don't have to take a back rest. आप कुर्सी पे या बेड पे भी बैठे हो, ये कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू आराम से. You don't need a special place to do this. To again make sure that you have all the resources to refer to, you do get a session recording. You basically get a login, और वो sessions आपके रहते हैं, आपकी access रहती है उन sessions के साथ में. You do get a PDF instruction set in both Hindi and English, and you also have a repeat session. आपका main learning session के बाद में practices के लिए 3-4 दिन आप खुद से करिए, उसके बाद में there is a follow-up session. You can join this session to get your practices revised, so to speak, और वो further confidence gain करने के लिए. So in the first 20 days, this learning happens. In the next 40 days, which is implementation, therein individual आपको support दिया जाता है या दिया जा सकता है जैसे आपकी जरूरत हो. तो उस हिसाब से in those 40-day period, we help you get into the discipline of doing it correctly. And then finally, there are the third phase, practice correction phase. We have 4 additional sessions wherein whatever mistakes you are making, or if your body has evolved, you need fine tuning in your practices, उसके लिए classes होती हैं. Plus, to help you gain knowledge about how to understand your symptoms, how to check your tests and readings, and how to step by step come out of medicine. इन सारी चीजों के लिए 4 sessions और होते हैं. And then there is an extended phase जिसमें वही support mechanism आपका continued रहेगा even beyond 3 months, irrespective of the time it takes for you to recover completely. So there is, all you need to do is you need to learn this as a 30-minute module. सुबह के समय में 20 मिनट और शाम के समय में 10 मिनट, तो 30 मिनट टोटल पूरे दिन भर के लिए. The efficacy, as I spoke in the beginning, 78% लोगों को results मिले हैं, people who have joined the program. 25% the medicine dependency is completely gone. This is within the 3-month period. 3 महीने के दौरान, इनफैक्ट ये तकरीबन 2-2.5 महीने के दौरान लोगों को जो बेनिफिट हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं. 25% मेडिसिन कंप्लीटली गॉन, एडिशनल 29% मेडिसिन डिपेंडेंसी रिड्यूस टू हाफ, एंड देन एडिशनल 24% उनके सिम्टम्स बहुत बेहतर हैं, बट द डॉक्टर्स आर कंट्रोलिंग देयर मेडिकेशन. So the cost of the program is 7,500 rupees. Now, before we do that, let me open up the poll for you.
So those of you who, whatever your inclination is, aapko theek laga, nahi laga, so please mention in the poll so that we can reach out to you, or we can guide you, or we might avoid you, whatever it is. So basically, this is the result that people have gotten. And the cost of this program is 7,500 rupees, which is applicable till 8 p.m. tomorrow. Otherwise, the full program cost is 8,000 rupees. So this is not just for the 3-month period, but for the extended period till the point you completely come out of your conditions. उन सभी चीजों के लिए this is what the cost is. Payment methodologies, all kinds of payment methodologies are available to you, whether bank or credit or debit or UPI methodologies, and everything is there. The program is beginning on a Saturday. So Saturday सुबह 7 बजे 24 जुलाई से ये हमारा program शुरू हो रहा है. So that is how it is. I was a little fast. I wanted to save you time. थोड़ा समय बचाना चाह रहा था मैं आपका. So we'll open up for questions and answers. I have allowed you to unmute yourself. You can unmute and you can ask your questions directly. Meanwhile, sabhi se requested, those of you who are interested in the program or have any questions, please share your phone numbers in the group chat. Please make sure that you share your phone numbers in the group chat. So I completely misread the timing. I thought it would start at, will this be repeated? This will be repeated, Sunita, but you would get the recording also in the WhatsApp group. तो आप वहाँ से देख सकते हैं. I am not getting understand. So ये Shailesh will reach out to you. आपको yes. Hello. Namaste, sir. Hello. Yes, ma'am. Go ahead. सर जो अभी सर ने बताया, स्वामी जी ने जो बताया कुंभक लगाना, वो सर समझ में नहीं आया. अगर इसी तरह अगर हम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर वो सिर्फ डेमो करके नहीं दिखाएंगे तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा? ठीक से सर समझ में नहीं आया. एक तो साउंड ब्रेक हो रहा था और सिर्फ डेमो करके नहीं बताया. अगर क्लास अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, अगर क्लास में भी अगर इसी तरह से सिर्फ वो मतलब मुंह से ही बताएंगे, करके नहीं बताएंगे तो सर कुछ तो समझ में आएगा नहीं. पहली चीज देखिए, ये एक सिर्फ टेस्टर था. दूसरी चीज ये कि नेटवर्क इशू के कारण अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर वो हम इसके लिए वीडियो शेयर करते हैं, इंस्ट्रक्शन शेयर करते हैं. वो तो क्लास में तो बिल्कुल अलग माहौल होता है. डेमो अगर मैं आपको करके बताता हूँ, अगर मैं सांस ले रहा हूँ और रोक रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आपको फिर भी दिखाई नहीं देगा. इसीलिए जब हम क्लास कंडक्ट करते हैं ना, नहीं कैसे दिखाई दे रहा? मैं सांस ले रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मैं कितना ले रहा हूँ? नहीं, आप डेमो जो करके दिखाएंगे वो कोई आसन थोड़ा ही है कि आपको दिखाई देगा. ये आसन थोड़ा ही है कि आपको दिखाई देगा. मैं करके दिखाता हूँ, आपको कितना दिखाई देगा बताइए मुझे. So when just to elaborate, आपके कितना पास दिखाई दिया आपको? तो ये आप पहले देखिए, ये आसन नहीं है कि आपको दिखाई देगा. ये अंदर आप कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हो, उसको आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ऐसे करना है. मेंटर्स आपको देख रहे होंगे, आपको पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मेजर लिखा होता है. पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना. वीडियो होगा जो कई बार रिपीट किया जाएगा, क्योंकि उसमें मैं एक एक स्टेप में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं. उसके बाद फॉलो अप क्लासेस होते हैं. जैसे ही आपने सीखा, आप करके देखिए, फिर फॉलो अप क्लासेस होते हैं, वहां पे आपके डाउट्स क्लियर करके वहां आपको करेक्ट करेंगे. तो क्लास एक अलग गोल होता है. कोई कॉन्सेप्ट समझाया गया, जस्ट एक टेस्टर दिया गया है ना. अगर आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा से इसको देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन मैंने क्लियर कर दिया हुआ है. कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. अगर आपको बोला जाए 3 बार सांस भरिए, तो कोई भी भर सकता है. इसके लिए डेमो कहां से देंगे और कैसे देंगे? अगर मैं देता भी हूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. हाँ, उसकी फिनेस हम क्लियर करते हैं. जब क्लास होती है तो एक बार ऐसे खींचना है, कैसा खींचना है, कितना एफर्ट, ये सारी चीजें बताई जाती है क्लास में. ये तो एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे कि केवल टेस्टर के तौर पे आप वापस देख लीजिए वीडियो, आपको आइडिया लग जाएगा. शुक्रिया, थैंक यू.
राइट, तो मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ ग्रुप में से। देश का, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। Kannada में so the program is not available in Kannada currently, so we are trying to develop that part as well, regional languages में and so on, but currently it is available only in Hindi and English. मेरा एक सवाल है। जी सर, बताएं। आपने 70-80 बैचेस किया है अलग अलग के, आपकी सक्सेस रेशियो कितना है, सक्सेस परसेंटेज कितना है? अभी तो बताया ये मैंने, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी इसके ऊपर काफी बात करी थी हमने, पहले भी करी थी सेशन में, और दोबारा से देखेंगे ना वेबिनार, तो उनको आपको सब मिलेगा। ये है हमारी एफिकेसी रेट, ये सक्सेस रेट है। एफिकेसी मतलब सक्सेस। थैंक यू। राइट, हेलो। यस मैम। सर मुझे एक्चुअली थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मुझे थायराइड नोडल है हल्का सा छोटा सा, और फिर ENT को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कुछ मेडिसिन की जरूरत नहीं है। थायराइड टेस्ट किया तो थायराइड नहीं है, तो ये कुंभक थेरेपी से कुछ उसको फर्क पड़ेगा सर? क्योंकि मुझे ज्वाइन तो करना हाँ, इससे फर्क पड़ेगा, और नोड्यूल तो इससे निकल ही सकता है। इसके अलावा आपकी बाकी फंक्शनिंग भी बेटर होती है। ये ना 2 तरीके से काम करता है। जब हम आपको डायग्नोज करके ये कुंभक सिखाते हैं ना, तो इट एनहांसेस योर इंटरनल कैपेसिटी, आपके अंदर के फंक्शनिंग को बढ़ाता है। तो ये एज रिवर्सल करता है। कुंभक 3 साल करो, 10 साल मिनिमम एज रिवर्स हो जाएगा। एज रिवर्सल करता है, आपकी आगे आके जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसको भी, उसकी रोकथाम, वो उसको रोकेगा। कुंभक प्रिवेंटिव है इन नेचर। हाँ, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो डॉक्टर ने बोला कोई ऐसे घबराने वाले नहीं, वो टिश्यू उनको ये दिखे, बट भी कभी बोला कि आपको करना है तो निडल टेस्ट करना है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं खाते वक्त कोई बात नहीं, प्रॉब्लम चिंता रहती है। नहीं, चिंता रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को एक चीज जरूर करना चाहिए। देखिए, आप मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, आप सर्जरी करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, आपको जो भी प्रॉब्लम है, एक चीज जरूर करना चाहिए आपको। वो जो प्रॉब्लम है ना, जो अंदर कमजोरी है या जो चीज वीक है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए जरूर काम करना चाहिए। इससे आपकी आगे की लाइफ बेटर हो जाएगी। हम आपको रोक नहीं रहे कि आप ये मत लो, वो मत करो, मगर एक काम तो जरूर करिए कि अपनी लाइफ को बेटर बना दीजिए। अपने आप को अंदर से इनवॉलंटरी फंक्शन को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। तरफ से मॉडल पे फर्क पड़ेगा तो मैं तो कल से ही ज्वाइन करूंगी। मेरे लिए बस हेल्थ इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं फर्क, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। बहुत सारे नोड्स ऐसे शरीर के जो एकदम से चले जाते हैं, इम्बैलेंस के कारण आते हैं। आगे चल के कई बारी नोड्स जो है ना, मल्टीपल्स हो जाते हैं। ऐसे होने के चांसेस रहते हैं, खास करके अंदर के। बाहर शरीर में हो तो आपके हाथ में होता है थोड़ा, मगर अंदर तो आपके हाथ में होता भी नहीं है। राइट। तो अगर उसकी तरफ में थोड़ा काम करते हैं तो सिचुएशन आगे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। चलो, थैंक यू सर। हेलो सर, ये कॉस्ट में आप दोनों सारे मेरे पूरे रोग कवर करोगे या फिर ओनली 1 या 2? क्या कवर करेंगे? ये कॉस्ट जो है 7,500 का, इसमें मेरे को 2 डिजीज है, थायराइड एंड डायबिटीज। दोनों कवर होगा होलिस्टिक ट्रीटमेंट? आपको बता दिया, अगर आपको थायराइड है, फिर डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, और भी कोई चीज आई, वो सारे के सारे एक ही बार में कवर होते हैं। थैंक यू। हेलो जी सर, बोले। हाँ सर, मुझे जानना था कि इसमें लाइकोमा का भी कुछ हो सकता है क्या? जैसे जो गठान रहते हैं बॉडी में, जो गठाने वगैरह होती है, क्योंकि इसका तो पूरी बॉडी में अगर हो रही है तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि एक 34 ईयर्स। हाँ देखिए, लाइपोमा अगर कैंसरस, हम कैंसर का प्रोग्राम भी करते हैं। अगर कैंसरस है तो उस प्रोग्राम में आना ज्यादा बेटर। अगर नहीं है तो फिर वो इसमें हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सर इसमें पॉसिबिलिटीज है कि उसको रिड्यूस किया जा सकता है क्या? मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, उसको रिड्यूस किया जाता है। बेसिकली हमारे शरीर में स्ट्रक्चरल कोई इशू आता है ना, जैसे कि स्किन पे कोई इशू आ रहा है, स्ट्रक्चर में कोई इशू आ रहा है, जैसे लाइपोमा आ रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, व्यान वायु कहते हैं एक हम। व्यान वायु हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, स्किन के एस्पेक्ट को मेंटेन करता है। यूजुअली वो एक एस्पेक्ट वीक जरूर होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स।
अगर उसको हम फिक्स कर देंगे ना तो ये चीजें जो है निकल जाती है। सर ये रिड्यूस होगी या मतलब बनना बंद हो जाएगी, क्या चीज होगी अगर हम ये बनना बंद हो जाएंगे, पहले तो रूट कॉज को एड्रेस करेंगे तो बनना बंद हो जाएंगे, और जो बाकी है वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि पूरी बॉडी में मतलब हंड्रेड्स के ऊपर ही होगी सर, 100 200 के आसपास। तो जो रूट कॉज को एड्रेस करेंगे ना पहले, तो वो बनना बंद हो जाए। पहला स्टेप तो ये होगा, बनना बंद हो जाएगी, उसके बाद वो बाकी भी रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए अगर कुंभक करेंगे, जो भी करेंगे, एक चीज जो बहुत सिंपल तरीके से जो अभी सिखाया भी है, अभी जो सिखाया भी है, अगर वो भी करना शुरू करें ना, अगर आप अपने बॉडी में रफ एजेस देखें, जैसे कोनी में, पाँव में रफ एजेस देखेंगे ना, तो जैसे ही 2-3 दिन भी करेंगे वो रफ एजेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये इतना इम्पैक्ट होता है इसका, तो इसीलिए ये आराम से उन चीजों को हैंडल कर सकता है। ओके सर। मनोहर जी, हाँ जी बोले सर। एक चीज वो भी होता ना कि फादर को एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो ब्रेन हेमरेज की वजह से क्या था कि उनको कभी भी चक्कर आना चालू हो जाते हैं, और ऑलरेडी बीपी एंड तो क्या बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम रहा है, और क्रिएटिनिन में उनका बढ़ा हुआ है बता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि वो चल भी नहीं पाते जैसे पहले से सब चीजें, तो क्या ये इसमें हेल्प कर पाएगा? अगर वो सांस ले पाते हैं तो फिर हेल्प कर पाएगा। ब्रेन की ज्यादातर थेरेपीज में वो ठीक से नहीं, उसको अच्छा। इकलौते चीज से हैंडल किया जा सकता है, बॉडी के अपने ही मैकेनिज्म से उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि वो अच्छा कभी भी सर, वो कभी भी ब्रेन का उनको होगा, चक्कर आए, नर्वस सिस्टम का होगा। हाँ हाँ, तो उनके साथ ये होता है सर, कभी भी चक्कर आते हैं और कभी भी गिर जाते हैं मतलब सर। हाँ हाँ, वो चक्कर क्यों आता है, वो एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर। बैलेंसिंग मैकेनिज्म पे अगर इम्पैक्ट आए, वो कमजोर हो गया है, तो उसको समझने की जरूरत है। कैसे कर पाएंगे फिजिकली, तो वो अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने बॉडी को उस तरीके से, और फिजिकली ये होगा भी नहीं। अगर कंडीशन ऑफ ब्रीदिंग, ही कैन सिट, anybody who can sit and in a condition of breathing, even if somebody can lie down and still can breathe, can वो उससे ये फायदा ले सकते हैं। तो कितने समय में कवर कर सकते हैं ये चीज को और लाइकोमा को? टाइम पीरियड वेरी करता है। टाइम पीरियड 3 महीने से लेके, कुछ लोगों का 3 महीने में बहुत असर आ जाएगा, कुछ लोगों को तो 2 हफ्ते में असर आ जाता है, कुछ 3 महीने में उनको इम्पैक्ट आ जाएगा, कुछ लोगों को 6 महीने में आएगा, कुछ लोगों को साल 1.5 साल भी लग सकता है। अच्छा। Now, even if 1.5 year, अभी सक्सेस रेट है ना, तो ये बताओ ना, एलोपैथी आप जो जाते हो, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लेते हो, सक्सेस रेट क्या है? 1% भी नहीं है। 1% भी हो तो भी तो करो, मगर 1% भी नहीं है। तो यहाँ तो टाइम पीरियड वेरी करेगा, बट एवरीबडी विल गेट इम्पैक्टेड और उनको हेल्प मिलेगा। हर एक इंसान 100% लोगों को फायदा होगा। ओके सर, देयर इज अ क्वेश्चन, ब्रेन की किसी को प्रॉब्लम है तो क्या वो रिमूव करी जा सकती है? रजनी जी, ब्रेन की क्या प्रॉब्लम है? सर यू वांटेड टू आंसर, आई थिंक, सॉरी। 2 चीजें हैं, ब्रेन एंड माइंड। पहली बात तो जो माइंड वर्ड है ना, इट डजंट मीन एनीथिंग, है ना। तो मगर फिर भी क्योंकि वो चलन में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो इसीलिए मैं अभी इसी को यूज करना मजबूरी बन जाती है। सो ब्रेन इज सेपरेट, माइंड इज सेपरेट। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं, मेंटल इश्यू को ब्रेन के साथ में रिलेट करते हैं। ब्रेन इज अ सेपरेट एंटिटी, ये आपके बॉडी को फंक्शन कराने के लिए काम करता है। माइंड इज लाइक एवरीवेयर। अगर इसको माइंड कहते हैं, माइंड ब्रेन में नहीं होता, इट इज एवरीवेयर, इन एवरी सेल्स एंड टिश्यू माइंड इज देयर। ये फंडामेंटली वो लाइफ का इंटेलिजेंस है, जिसको ये माइंड कह के कर रहे हैं। इट्स अ कंफ्यूजिंग थिंग, माइंड इज अ कंफ्यूजिंग थिंग। तो मेंटल इश्यूज किसी को भी है, 100% निकल जाएंगे आप कुंभक से, 100%। देयर इज नो क्योर अदरवाइज। अगर माइंड का इशू है, सर द पर्सन, ब्रेन का इशू इज फिजियोलॉजिकल। अच्छा सर द पर्सन इज सेइंग चक्कर आते हैं, डिजीनेस और नॉजिया। हाँ, डिजीनेस तो ब्रेन का इशू जरूरी नहीं है। इट माइट बी एन इशू विथ योर कॉक्लिया, कान के अंदर ना फ्लूइड होता है,
वो बैलेंस करता है। वो अगर स्ट्रेंथ में कम है, कई लोगों को चक्कर आते हैं, कई लोगों को टेनाइटिस होता है, पर्दे से रिलेटेड इशू, अगर वो कमजोर है तो टेनाइटिस होगा। तो जरूरी नहीं कि वो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। पहली बात तो इसीलिए मैंने शुरुआत में वेबिनार में कहा था, डोंट मेक एन आइडिया। व्हाई यू मेक एन आइडिया? बिकॉज समबडी इज सेइंग समथिंग। वो आइडिया ही आपको खराब कर रहा है। ये ब्रेन का इशू जरूरी नहीं कि ब्रेन का इशू, ये कॉक्लिया का इशू अगर वो है तो वो आराम से चला जाएगा, बहुत आराम से। इवन इफ इट इज अ ब्रेन इशू, इट माइट टेक अ लिटिल टाइम, बट वो जा सकता है ना। एटलीस्ट यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट। अभी तो आप ठीक करने की तरफ में कोई काम ही नहीं कर रहे हो, फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक होगा? मगर शुरुआत करेंगे। अगर आपको 100 किलोमीटर भी चलना है तो एक कदम से ही शुरुआत होता है। एटलीस्ट यू शुड बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। एवरीबडी विल गेट हेल्प, बट एटलीस्ट यू शुड वॉक। सर मेरे कोई क्वेश्चन है। बोले मैम। हाँ, मैं ठीक तरह मैं ज्वाइन कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ठीक तरह से कर सकती हूँ राइट और रॉन्ग, वो मुझे मालूम नहीं है। तो आप कैसे समझ सकेंगे मैं जो कर रही हूँ? वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि आप गलत कर ही नहीं सकें। ये हमने इंश्योर कर रखा है प्रोग्राम में कि आप चाहोगे भी तो भी गलत नहीं कर पाओगे। ओके, नहीं अभी मैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है आप चुपचाप आ जाओ। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सही करवाना, आप गलत नहीं कर सकते किसी भी। हाँ, अभी आपने जो 3 बार आपने बताया तो मैं अभी कर रही थी, लेकिन ठीक से कर रही कि नहीं कर रही हूँ तो वो मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे आप ये देख सकेंगे तो मुझे हाँ, ये तो वेबिनार है ना। अच्छा, ये तो उसमें तो मेंटर्स होते हैं। जब हम क्लास करते हैं तो आपको कोई देख रहा होता है। ओके ओके, तो वो भी नहीं है, मल्टी टीयर सपोर्ट है। आप गलती कर ही नहीं सकते। हाँ, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि आप करना ही नहीं चाहते हो, वही बात। उसको कोई भी नहीं हटा सकता। नहीं, मैं करना चाहती हूँ और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं भूल जाती हूँ, हमारी मैं जिम्मेदारी। भूल जाती हूँ। नहीं, वो चिंता नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। भूल जाओगे, आपको याद दिलाना, कैसे कैसे प्रैक्टिस सेशन करवाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो भूल जाइए, वो आराम से निश्चिंत होके आप ज्वाइन करें। हाँ, तो कल मैं पेमेंट कर दूं ना? जी मैम, वो उसकी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगी। आपने अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। मेरे को मेरा नंबर तो लिख दिया है मैंने, लिख दिया है, तो हम आपको रीच आउट करेंगे। बाकी डिटेल्स आपको इसमें ग्रुप में दी जा चुकी हैं। अच्छा, मुझे आता नहीं है सब कुछ पेटीएम के जो भी है, तो मेरा बेटा आएगा तो वो करेगा, मुझे नहीं आता ये सब कुछ। ठीक, कोई नहीं मुझे नहीं आता। ये वेबिनार भी वो करके चला गया है, मुझे नहीं कनेक्ट करता और सब कुछ करता नहीं आता है मुझे। कोई नहीं। आपको वो YouTube में नहीं आता? मुझे YouTube अच्छी लगती है, YouTube में नहीं आता है ये प्रोग्राम। YouTube में तो नहीं है मैम, फेसबुक पे है। फेसबुक के है? अच्छा, वो मेरे फेसबुक में नहीं। वो बता देगा आपको, बेटा गाइड कर देगा कोई। हाँ, वो गाइड कर देगा मुझे, एक बार सिखा देगा तो कोई बात नहीं होगी। मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो वो ऐसा मुझे कैसे मिले कि मैं हर सारी उम्र कर सकूँ ये? नहीं, कर लोगे आप आराम से। काफी लोग रहते हैं गाइड करने के लिए, उसकी परवाह नहीं। ओके, थैंक यू। इसके अलावा सर राजेश जी का कहना है कि he has a rare cardiac issue, cardiac spinster and fistula. He has mentioned achalasia cardia. The fistula, if you are saying cardiac, sphincter basically muscle से related issue आता है. So said, can you come out of it, but you will have to work. जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, if there is an rough edges on your body, just do the kumbhak which has been taught in this webinar for a week or so, and you'll see it will become smooth. Any kind of myopathy यानी muscle से related, it can be cardiac or otherwise. Muscle से related, if it has got shrunk, or if it has inflammation, or if it is not fine in terms of function of shape, ये सारी चीजें आप एक एफर्ट या फोर्स लगा के उसको ठीक किया। ये तो आसान है। दीज आर फिजियोलॉजिकल इश्यूज।
साथ फंडामेंटली फिजियोलॉजिकल तो बहुत आराम से हैंडल होते हैं, ओनली द टाइम पीरियड वेरीज। सर जी एक सवाल है, आपने अभी बताया कि देवपान कुंभक से 16 बार से ज्यादा करने से कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो जो थेरेपी रहेगी उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है क्या? आज तक एक एग्जांपल दीजिए मुझे कि ह्यूमन हिस्ट्री में जिस इंसान ने अपनी सांस रोक के अपने आप को खत्म कर लिया हो। कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा तभी खत्म होगा, अपने आप अपनी सांस रोक के ये शरीर खत्म नहीं करता। सो कुंभक से नुकसान नहीं हो सकता इस शरीर का, ये 100% गारंटीड है। डिफिकल्टी आ सकती, डिफिकल्ट कुछ बदलाव बहुत ज्यादा आए तो आपको झेलेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लोग प्रॉब्लम समझते हैं मगर वो प्रॉब्लम ही नहीं है, शरीर बचाने की कोशिश करता है और उसे हम प्रॉब्लम मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीवर कभी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि शरीर फीवर बना के अपने आप को हैंडल करता है, हम फीवर डाउन करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर में से तो शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर रीजन को बिना हैंडल किए हम ब्लड प्रेशर डाउन कर देते। तो प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ना, हमने हर चीज को प्रॉब्लम बना दिया, ये बॉडी कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता। अगर इसको जो करना चाहे करने दिया जाए, भैया क्या करना है, चलना है। लेकिन कोई चीज फास्ट बदलाव होगी ना तो भी आपको प्रॉब्लम जैसी लगेगी। और शायद अगर कोई चीज आपके अंदर इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस फास्ट बदलाव को हैंडल कर सके तो आपको प्रॉब्लम जैसा लगेगा। प्रॉब्लम नहीं होता, वो तो हो जाएगा सेटल आगे चल के, मगर लगेगा प्रॉब्लम इनिशियली। इसीलिए स्केल प्रिकॉशन दिया गया है। और प्रोग्राम में क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि गाइडेड है। गाइडेड है इसका मतलब हम वो इंश्योर करेंगे ना कि उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। सर एक सवाल है स्किन सैगिंग को लेकर। तो स्किन सैगिंग हाँ कई कारण से हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम। आपके नर्वस सिस्टम और जो मसल्स का जंक्शन है ना, जो साइनैप्स है वो वहां पे वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। इट कैन बी ड्यू टू अदर रीजंस लाइक जिसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी ऑफ मसल्स की फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू व्हाट यू से ड्राइनेस ऑफ मसल्स के कारण भी हो सकता है, मसल्स ड्राई हो रही हैं तो ट्रांसपोर्टिंग इशू भी हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजन। सॉगिंग तो बहुत अच्छे से हैंडल जाता है, बड़े आराम से, बहुत आराम से हैंडल हो जाएगा सॉगिंग तो। वो आप देखेंगे, मैंने बताया आपको ये एंटी एजिंग का बड़ा कमाल का मेथड है। आप शुरू करते ही आपको पता चलेगा you'll start becoming young, not even functioning but even in looks। सर एक सवाल बड़ा कुछ लोगों की तरफ से आया हुआ है ड्यूरेशन को लेकर, इन द सेंस दैट काफी लंबे समय से है एटसेट्रा, तो उसकी वजह से रिकवरी में कोई चैलेंज आता है एडिशनल, या उससे फर्क नहीं पड़ता है, या कैसे बीमारी की ड्यूरेशन? पहली चीज ड्यूरेशन इसलिए क्योंकि आपने ठीक करने की तरफ में तो एक कदम भी नहीं उठाया, इसलिए लंबे समय से सफर कर। नाउ व्हेन यू स्टार्ट, आज अगर आप शुरू करते हैं, क्या उसमें चैलेंज आएगा? मतलब या तो आप दो चीज में से एक चीज पकड़ लिया, डू यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम और यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। इफ यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, फॉरगेट अबाउट डूइंग दिस। क्यों आए हैं यहाँ पे? आप रहिए जैसे रहना। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, यू हैव टू मेक एन एफर्ट। और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 3 महीने में ठीक हो जाइए, 6 महीने में ठीक हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? 1 साल में अगर आप पूरा ठीक हो जाते हैं तो इज देयर अ प्रॉब्लम? अभी हमारे पास में एक लेडी का फोन आया, 1 साल पहले उसने ज्वाइन किया था, बहुत प्रॉब्लम बीच में आई मगर कुंभक नहीं छोड़ा, 1 साल के बाद सारी दवाइयां छोड़ गई। इज इट अ बैड डील देन? 1 साल में ठीक होते हैं तो भी क्या बैड डील है ये? इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं ना आपके पास में, कोई और चीज है तो वहां जाइए ना। देन व्हाई यू कमिंग हियर? और कोई है ही नहीं ठीक होने का। अगर आप यही चीज ठीक होने का है, एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। टाइम वेरी करेगा केवल, मैंने बताया टाइम वेरी करेगा केवल। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, बस टाइम वेरी करेगा। फायदा तो सबको होना ही है।
हेलो, हाँ सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हेलो, बोलिए। I can hear you. I can हाँ hear you. सर, Please go ahead. ये कुंभक का जो इफेक्ट होगा, हाँ, हाँ, ये जो इफेक्ट होगा सर, वो एज को वैरी होता है क्या? यानी मतलब अर्ली एज में, यानी अब मैं 32 हूँ, तो जल्दी इफेक्ट होगा या फिर मेरी मम्मा को थोड़ा लेट होगा इफेक्ट, ऐसा कुछ वेरिएबल रहता है? वेरिएबल एफर्ट रहता है। अच्छा, हाँ, 32 आप तो यंग हो, आप जब एफर्ट लगाओगे तो बड़े कंट्रोल में एफर्ट लगाओ, अच्छे से एफर्ट लगाओगे। वही ओल्ड एज वाला जो है एफर्ट थोड़ा कम लगाएगा। तो कुंभक तो एफर्ट है ना, केवल उतना ही वेरी करता, मगर ये नहीं है कि फायदा किसी को नहीं होगा, किसी को, ऐसा कुछ नहीं है, सबको होना है। जैसे ही आप कुंभक करेंगे वो फायदा उसी समय से शुरू हो जाता। केवल एफर्ट लगाने का जो कहते हैं ना कि उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी वेरी करती है। इम्पैक्ट तो सबको ही होना है, फायदा तो सबको ही होना। Like to add over here और सर that वो कनक जाता सर, ये अपना मेडिसिन चालू रखना है सर ड्यूरिंग द क्लास? हाँ शुरुआत में तो चालू रखेंगे ना, शुरुआत में चालू रखेंगे। जैसे ही अंदर का स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, फिर दवाई छोड़ दीजिए। आप लोगों के सवाल हों या आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो प्लीज मेक श्योर, या नहीं भी हो तो भी प्लीज मेक श्योर दैट यू रेस्पॉन्ड टू द पोल्स एंड यू शेयर योर फोन नंबर्स इन द ग्रुप चैट। और बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है या अभी व्हाट्सएप के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो लिंक दिया गया है आपको, आप व्हाट्सएप के ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू वुड लाइक। एज रिलेटेड रिजल्ट्स को मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि यंग लोगों को भी फायदा होता है, और हमारे अक्रॉस प्रोग्राम्स वी हैव सीन इवन पीपल हु आर above 60-65, they sometimes also get faster results. So there is no fixed criteria related to age or the time that you've had this condition. Right. और सर मेरे को क्वेश्चन है, ओके, हाँ, ये जब मैं कुंभक का स्टार्ट करूंगी तो जो मुझे रिकॉर्डेड वो मिलेगा कुछ भी, शायद मैं भूल जाऊं बाद में? तो रिकॉर्डिंग भी मिलती है मैम, आपको पीडीएफ में इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं ताकि वो पढ़ के आप कर सकें, दोनों भी। हाँ, क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ ना, इसलिए मेरे को डाउट है। चिंता ना करें मैम, आपको याद दिलाने के लिए बहुत सारे मैं बार बार भूल जाती हूँ सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी तो कर लूंगी, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं रहेगा क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। आप अपने डायग्नोसिस के फॉर्म में याददाश्त की बात भी लिख दीजिएगा। ना डेफिनेटली लिखूंगी ना, डेफिनेटली। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो मेरा। बिल्कुल लिखिए। ओके, थैंक यू, मैं कल पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ओके। So one of the participants mentioned that right side thoda sa headache hua tha after doing the practice today. So she is considering joining, but she is a little worried about the side effects potentially. No, there is no side effect of कुंभक। कुंभक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चलेंगे भी तो भी आपके पाँव में दर्द हो जाएगा, तो चलने का साइड इफेक्ट हो गया वो तो। Now this is ये लॉजिक ये छोड़ दीजिए। आप जोर ज्यादा लगाएंगे तो हो सकता है जो हिस्सा वीक हो उसमें थोड़ा पेन आएगा, मगर वो मजबूत हो जाएगा। चलेंगे से जॉइंट में जो शुरुआत में डिफिकल्टी आती है वो खत्म हो जाती है ना। द मोमेंट स्ट्रेंथ बिल्ड्स अप, जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड होता है वो ठीक हो जाता है। तो इट्स नॉट अ साइड इफेक्ट, इट्स यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट एट दिस पॉइंट। बस इतनी सी बात है, आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइफ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुंभक इज इक्विवेलेंट टू लाइफ। So Miss Hina, Miss Sarita and Miss Somana, I think आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन और पूछूं। मैं हर रोज वो 7 स्टेप इम्यूनिटी का है ना आपका, वो मैं करती हूँ डेली जी। वो प्रैक्टिस करती हूँ मैं गार्डन में, 7 स्टेप कुंभक फॉर इम्यूनिटी।
इम्प्रूवमेंट। हाँ जी बोलिए। तो वो ठीक है ना, अभी तो मैं वो कर सकती हूँ नहीं? हाँ वो कर सकते हैं, वो साथ में भी कर सकते हैं, आपको बताएंगे वो कब करना है। ओके ओके, थैंक यू। शीतल जी, सुमना जी, आप लोगों का सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, मिस सुमना एंड मिस शीतल, प्लीज यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर अजॉय और मिस श्रीदेवी, बेसिकली आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Otherwise, there is not much more remaining in the session. So we have shared what we wanted to share. It is for you to decide now. So the program is starting on 24th of July, which is Saturday, morning batches, Saturday 7 a.m. in the morning. So आप morning में join कर सकते हैं. Every month we have these batches. So basically this one is at a convenient weekend. तो उस हिसाब से people who are considering, they should try and do this now. And in any case, you know, sooner the better. तो बाकी आप लोगों के किसी तरह के कोई सवाल हो तो I am sharing couple of numbers in the group chat. You can reach out to us on either of those numbers for your queries or concerns or any confusion that you may have. तो वो आप कर सकते हैं. And बाकी we would love to have you all very soon. So the first one, which is 9717333655, is my number. Otherwise, the program coordinator's number is 962558657. Does it help in skin? Mr. Mohan ji, अभी उसी की बात हुई थी कि स्किन टाइटनिंग, सैगिंग स्किन को लेकर या रिवर्सिंग ऑफ एज को लेकर, तो स्वामी जी ने उसके ऊपर काफी समय बोला था. तो वो सब चीजों में डेफिनेटली फायदा होता है. इट डज इम्प्रूव स्किन क्वालिटी. नाउ इफ योर क्वेश्चन इज स्किन पिगमेंटेशन, तो वो थायराइड की एक अफेक्ट रहता है स्किन पिगमेंटेशन का. तो थायराइड में स्ट्रेंथनिंग होगी तो दैट प्रॉब्लम आल्सो वुड बी गेटिंग रिलीव्ड. either skin pigmentation or rough skin, those kind of things. Basically वो thyroid का effect है. So any other questions? We are closing this session now. You will get the recording in your respective WhatsApp groups, and feel free to reach out to us. All right, sir. So any closing remarks? We'll close the session. All right. So my request is from all of you. See, whatever you invest in, that grows. दवाइयों पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, दवाइयां बहुत बढ़ गई, and the whole humanity is getting impacted by chemical drugs. हमारे फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही, इनफर्टिलिटी इश्यूज. हमारे बच्चे जो हैं, our children are getting disease in their early ages. Chronic disease has become more than epidemic at this point of time. Just one of the reason because it is happening is incessant use of unnatural chemical medicine, and one why it has happened is us, हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर दिया. So if you invest in health, health will increase. अभी टाइम आ गया कि आप हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए और हेल्थ बढ़ जाएगा. तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये आपको सोचना पड़ेगा. दैट कीप योर माइंड अ लिटिल फ्री, थिंक वाइजली एंड इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस. शोभा हैज अ क्वेश्चन सर. शोभा जी पूछ सकते हो म्यूट करके. नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते. आ रही है मैम. हाँ जी बोलिए. मुझे अप्रैल में कोरोना हो गया था, उसके बाद से मेरे ये सब ग्लैंड सब, उसके बाद बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है. यहाँ पर बहुत स्वेलिंग आ गई है, और मुझे थायराइड प्रॉब्लम करीब 15 साल से है. तो ये सब क्या मेरे ठीक होंगे?
आप आ जाओ, ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा, ये स्वेलिंग सब कुछ निकल जाएगी। प्रोग्राम ज्वाइन करो, कुछ ही हफ्तों में आपका स्वेलिंग चला जाएगा। थैंक यू सर। आप सभी लोग जिन लोगों को प्रोग्राम के बारे में सवाल हैं या कोई और भी सवाल है हेल्थ को लेकर, और या फिर इंटरेस्ट है प्रोग्राम में, उन्होंने नंबर नहीं शेयर किए हैं, आप प्लीज अपने नंबर शेयर कर दीजिएगा यहाँ पर या व्हाट्सएप ग्रुप में एंड सो ऑन। और अगर किसी ने अभी भी पोल पे रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो भी, अब पोल तो हमने बंद कर दी है, लेकिन आप नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो विल रीच आउट टू यू, हम लोग आप लोगों तक पहुंच के आपसे आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। विद दिस वी विल बी क्लोजिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नमस्कार, गुड नाइट।